हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज की जो मेरी गेस्ट हैं वो है मिसेस रूपांजलि एम देवगन। मिसेस देवगन, यूँ तो उनका जो बैकग्राउंड है वो है होटल मैनेजमेंट का, लेकिन लाइक अ गुड फौजी वाइफ उन्होंने भी शादी के बाद पहले बीएड किया, फिर एमए किया साइकोलॉजी में, और 15 साल टीचिंग भी की। लेकिन जो ट्रू कॉलिंग थी वो है टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल हीलिंग। सो आज वो एक एस्टैब्लिश्ड टैरो कार्ड रीडर है। ना केवल इन मॉड्यूल्स को वो सिखाती हैं बल्कि साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करती हैं। उनके जो क्लाइंट्स हैं वो इंडिया और इंटरनेशनल दोनों जगह पे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी जर्नी जानते हैं। सो वेलकम टू माय पॉडकास्ट मिसेस देवगन। Thank you so much, Kiran. And before we start, I'd like to first of all congratulate you that despite your husband being far away and two young children, you are making the effort to bring Army Wives forward and how we all, try to maintain our work-home balance. So congratulations to you, and I hope you see greater heights in this. थैंक यू। And thank you for having me over. Yeah. थैंक यू सो मच मिसेस देवगन। मिस देवगन, सबसे पहले तो मैं उसी से शुरुआत करूंगी क्योंकि मुझे लगता है हम सबकी ना हिस्ट्री बड़ी ही वो है, इंटरेस्टिंग है। कैसे शुरुआत की आपने और आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक की? See, I'm a good 4G daughter, granddaughter, daughter-in-law, wife. Fourth generation army from both the sides, me and my husband both. So ऐसा नहीं था कि मेरे लिए कुछ नया था या मुझे पता नहीं था कि आर्मी लाइफ में है क्या. But definitely being a daughter and being a wife, the roles are very different. And like you mentioned, I started off after my 12th. I've done my hotel management, worked in the hotel industry. मेरी inclination towards teaching थी. So I would not say कि I became a teacher because I married a Fauji. I always wanted to get into the teaching line. As luck could be, I married a Fauji. So it gave me that inspiration. So yes, 15 years teaching kiya, but even as a child, I was very inclined towards the occult. You know, reading about the unknown. And for me as a young girl, घर में भी सबका वो था कि for me, my Bible was Linda Goodman, right? So I used to keep carrying it around, and I had a mini diary जो अभी भी मेरे लोग मिलते हैं तो they tease me about it कि my first question used to be what's your zodiac sign. So that's how it just started. I was interested and I used to keep reading about it, but वही होता था कि शादी हुई, initially baby, so I could never actually do a proper certified course in it, and I did not want to start practicing till I felt I was ready. Although knowledge तो गेन कर लेते हैं. आजकल भी आप देखो, थैंक्स टू कोविड ऑल्सो बहुत सारे टैरो रीडर्स आ गए, लॉट ऑफ पीपल हु लर्नड इट, बट लर्निंग इट इज डिफरेंट. बट बीइंग इंट्यूटिव अबाउट इट एंड डूइंग योर जॉब वेल, इट्स द सेम थिंग एज डॉक्टर्स. अ लॉट ऑफ पीपल स्टडी मेडिसिन बट सम आर गुड एट इट, सम आर नॉट. तो बस वो करते करते ऐसा एक मौका मिला, गॉड ब्लेस दिस वंडरफुल लेडी जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला. सो आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक. एंड COVID ka the only plus point I would say for me was that I got this realization that I don't need to carry on with a job and get restricted by it, because this was something which became like a full-time profession for me. And now for the last 4 years, this is all that I'm doing. I'm a counselor. So I do my counsels online also. I visit a few schools also here, but like a visiting counselor. I've not committed to a job. And apart from that, tarot, numerology, and my crystals. And I teach the same, so my teaching also carries on. So yeah, that's been my journey, and it's a happy one, touch wood, so I'm good. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और आई थिंक कोविड के बाद ना, कोविड में सब कुछ बुरा बुरा ही हो रहा था, लेकिन आई थिंक उसके बाद जो लहर आई है और सोशल मीडिया, द वे इट एक्सपेंडेड, और लोगों ने जिस तरह से अपने करियर को री इन्वेंट किया है, आई वुड से कि अब आपकी जो जगह किस जगह पे हो वो डिपेंड ही नहीं करता, उससे कोई मैटर नहीं करता. एंड इट्स लाइक अ बूम फॉर ऑल्सो. बिल्कुल, किसी भी जगह पे पोस्टेड हो, आप रिमोट से रिमोट जगह पे भी पोस्टेड हो तो भी आप कुछ ना कुछ अपने लिए कर सकते हो वहां पे बैठे बैठे. Very true. And I hope we all can make use of this, and take advantage of it. वो अच्छा है. बिल्कुल. और अच्छा, अब आप, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, और मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने टैरो कार्ड के बारे में काफी बातें की. तो आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या क्या मॉड्यूल्स हैं आपके, और ये काम कैसे करते हैं एक्चुअली. See, counseling is clear. I've done my master's in psychology. Counseling is simple and known to everyone, so it does not need explanation. Now see, tarot. Tarot is a deck of 78 cards. हमारे cards होते हैं.
right? आजकल again in the market बहुत types of cards आ गए, but these are the original Rider-Waite deck of cards, and I stick to them only. And apart from them, I only use my fairy cards for guidance कभी कभार. So these are a deck of 78 cards which have a picture. Each one has a picture on it. अगर आप देखें तो, and each picture has a story to tell. So there's so much information about it if I start talking, but in short, tarot is a guidance tool जिसको हम use करते हैं to answer your questions. As simple as that. Tarot is not going to change your destiny. Tarot is not going to make decisions for you. But what I also tell my clients is कि मेरा और tarot का काम, numerology का काम ये है to give you the pros and cons and to give you a path. For example, आपको कहीं पहुंचना है and I tell you this is not the correct way, take another way. You decide either to listen to me or not to listen to me. So eventually whether you reach your goal or not, it depends on your decision. My job is to give you that path. So I'm like the GPS. Follow it or don't follow it. Right? Absolutely. So tarot is about answering questions. Now numerology is, there's a lot of science behind it. What I follow is the Pythagorean numerology. Right? So Pythagorean numerology works on the low shoe grid. इसमें हम 1 से 9 के साथ काम करते हैं. So basically we work with the 9 ग्रहस and we make a low shoe grid. जैसे पत्री बनती है 12 घरों की, low shoe grid बनता है 9 ग्रहों का. अब उसमें we work around with a lot of variables like direct numbers. Direct numbers are your direct digits from your date of birth. And 3 very important indirect numbers, which is like the psychic number, destiny number, karmic debt, जिसको काफी न्यूमरोलॉजिस्ट कुआं नंबर भी बोल के चलते हैं. सो जैसे अगर आप मुझसे टैरो तो आप फेस टू फेस पूछो, उसी टाइम कार्ड्स निकाले, आंसर्स हो गए, इट्स लाइक ऑन द स्पॉट. बट न्यूमरोलॉजी में क्या हो जाता है ना कि जैसे बहुत सी बेसिक चीजें हम आपको हाथों हाथ बता सकते हैं, पर जो इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप चाह रहे हो, यू नो कि एवरीथिंग शुड बी एनालाइज्ड, योर नेम टोटल टू योर मिसिंग नंबर्स टू द रेमेडीज यू वांट, मोबाइल डिजिट्स, आजकल मोबाइल डिजिट्स हो गए आपके, पर्सनल ईयर एनर्जीज हो गई आपकी, ये सारे में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज एवरी स्टेप हैज अ डिफरेंट कैलकुलेशन टू डू. राइट. And crystals, healing crystals, aap dekho, I'm wearing a few also. So now these are like a support system for me and my clients, those who believe in it, and you can wear them, you can keep them. जैसे ये एक फॉर्म है जिसको मैं हमेशा रखती हूँ अपने कार्ड्स के साथ. This is pyrite. इसको fool's gold भी बोलते हैं. So there's a lot, but I should stop and let you ask it. बिल्कुल. जैसे एस्ट्रोलॉजी is a very vast subject. आप जितना उस पे डीपली पढ़ते जाओगे उतना ज्यादा आप पाओगे कि और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है. मतलब all I can say is, Kiran, I have been doing these modules for 8 years now, practicing them for 8 years now. Still I feel there's so much for me to learn. मुझे ऐसा, although I'm teaching also, तो भी I tell my students कि कल को if I learn something new, I'll be the first one to call you up and tell you कि ये कुछ और नया पता चला है, तो you also pick it up from me, you know. और इनफैक्ट आपने बहुत सारे न्यूमरोलॉजी में तो मुझे लग रहा है कि आजकल अगर हम खुद भी अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करें तो आपको सबसे ज्यादा वीडियोस जो दिखती हैं वो आजकल न्यूमरोलॉजी की है. देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप. मैंने तो पहली बार सुना कि मोबाइल नंबर का भी कुछ नंबर का सीन होता है और वो भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसी जाएगी. मेरे हफ्ते में कम से कम 1 या 2 क्लाइंट्स कम से कम हफ्ते में हैं जो मोबाइल डिजिट्स लेते हैं. लोग नाम लेते थे पहले, न्यूबॉर्न बेबी नेम्स, बेबी करेक्शन कराते हैं लोग, वो सब तो था. बट रिसेंटली एक तो अवेयरनेस भी बहुत आ गई है एंड कुछ अब की जनरेशन को ये भी लगता है कि इट्स लाइक अ क्विक फिक्स मेथड. ऐसा नहीं है. दीज आर जस्ट टूल्स टू हेल्प यू. आपका एफर्ट ही रहेगा, तो वो चीज हमेशा यू नो सबको क्लियर रहनी चाहिए. कुछ मैजिक नहीं होने वाला. अगर मैजिक होता तो सबसे पहले मैं अपनी लाइफ को परफेक्ट कर लेती ना. बट वी ऑल हैव आवर अप्स एंड डाउन्स. सो इट्स ऑल अबाउट राइट. बट यू आर सेइंग दिस बिग थिंग, यू नो, कि अगर ऐसा कुछ क्विक फिक्स होता तो जो आपको बता रहे हैं वो खुद अपनी लाइफ पे उसको यू नो दे स्टार्ट एम्यूलेटिंग और अपने आप अपने लिए वो सब कुछ चमत्कार कर देते. हम बस नेविगेट करना सीख पाते हैं बेटर, सो दैट यू नो वी कैन डील विद इट. कोई यहाँ डेस्टिनी बदल नहीं सकता. राइट. बिल्कुल. और अच्छा, अब हम पर्टिकुलरली अगर कुछ चीजों के बारे में बात करें, जैसे आपने साइकिक नंबर बोला, आपने कार्मिक डेट नंबर्स बोला, सो आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू दैट. तो ये मुझे थोड़ा ज्यादा अगर इलैबोरेट करके बता पाए कि साइकिक नंबर्स क्या होते हैं. सो जैसे मैंने बोला 3
तीन वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेट किए जाते हैं। तभी अगर आप देखो कि कोई बोले, फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? Mine is 16 November 1989. है ना? सो अब इसमें क्या हुआ कि ज्यादातर लोग क्या सोच के करते हैं कि इफ यू आर 16 दैट मीन्स यू आर 7। Right. हर एक डबल डिजिट को भी सिंगल पे लाया जाता है, बिल्कुल. बट यू आर नॉट ओनली 7. 7 is your psychic number, right? So for people who are watching, your psychic number is just your date. तो अगर आप 16th November हो तो जो 16 आपकी डेट है वो आपका psychic number हुआ. डबल डिजिट है तो उसको सिंगल पे ले आते हैं because we work with 1 to 9. Right. Clear? That is your psychic. Destiny is your complete date of birth. Month, year, सारा कुछ add up करके जो digit आती है, that is your destiny. Karmic debt again is calculated. There is a formula we use, separate for males, separate for females, जो कि node के ऊपर बेस होता है. मतलब उसमें again बहुत maths होता है, logic होता है, science. उससे हम एक karmic debt number निकालते हैं जो कि as the name suggests आपके ऊपर एक कर्जा है, किसी एक planet का कर्जा है. अब वो कम है, ज्यादा है, क्या है और उसको कैसे पे बैक करना है वो होता है. सो लेट्स पहले साइकिक की ही बात करते हैं. जैसे आई डू अ लिटिल very quick exercise for the people watching also. It's good, it's fun because मैंने recently एक presentation भी किया था and I realized people enjoyed it a lot. अब जैसे those of you who are listening है ना, who are watching, mentally just calculate your psychic number. Like I told you, psychic number is just your date. अभी जैसे किरण ने बोला 16th November, so 16 is her psychic number जिसको 7 पे ले आए. So ऐसे अगर आप mentally अपनी psychic date calculate कर लो तो one by one quickly I'll tell you what those numbers are governed by and some interesting characteristics about it. Right. Okay. So जैसे हम 1 को लेते हैं, 1, 10, 19, 28, जो इन dates पे born हुए वो 1 number हुए. Now 1 is governed by the sun, सूर्य. तो जैसे आप सूर्य को लेके चलते हो वो ही कैरेक्टरिस्टिक्स उस इंडिविजुअल में आते हैं. अब अगेन सिर्फ एक चीज पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, डेस्टिनी और वो बहुत कुछ देखा जाता है, पर वहां नहीं जाएंगे. विल ओनली टॉक अबाउट द साइकिक बर्थ नंबर. नंबर 1 पीपल विल बी सच पीपल जो कि जैसे ही रूम में घुसेंगे ना आपको उनकी प्रेजेंस फील होएगी. जैसे सूर्य निकलता है सुबह सुबह, यू कैन फील इट, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती. नंबर 1 पीपल हैव दैट काइंड ऑफ ऑरा अबाउट देम. कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल्स. नंबर 1 वाले इंसान को अगर आप फॉलोअर बना के काम कराने की कोशिश करोगे, ही और शी विल बी मिजरेबल. बट जैसे सूर्य यू नो फील्स वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट हिमसेल्फ, तो कभी कभार कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है. कभी कभी ईगो एंड प्राइड भी तंग करता है, एंगर इश्यूज. तो उन चीजों को थोड़ा सा सप्रेस करके चलना पड़ता है. नंबर 2 पे आते हैं, लाइक 2, 11, 20. तो ये 29, ये डिजिट्स जब एड अप करते हैं 2 पे आता है. 2 इज गवर्न्ड बाय चंद्रमा, मून. तो जैसे आप मून के बारे में सोचते हो, शांत, काम, ठंडा, यू नो द मदर फिगर. सो मून वाले लोग आर बेसिकली शांत, इमोशनल, राइट. वो यहाँ से नहीं यहाँ से सोचते हैं. Their first instinct is from the heart, not from the mind, and they are excellent followers. तो कोई ऐसा प्रोफेशन हो जहाँ पे follow the lead करनी है, a number 2 person will be happier doing. Also excellent diplomats. लड़ाई खत्म करानी है, number 2, you know, शांत, diplomatic. But a problem हर नंबर में आते हैं, good and bad हर एक में होता है. Number 2 will be very very emotionally you know sensitive, mood swings रहते हैं. Okay, number 3 पे चलते हैं. So number 3 people are governed by Jupiter, गुरु, blessed. Jupiter को किंग ऑफ प्लैनेट्स मानते हैं, वैसे इतना अच्छा मानते हैं. कम्युनिकेशन एक्सीलेंट. कभी किसी से कोई बात मनवानी है, नंबर 3 वाले को आगे भेजो, चांसेस आर वो आकर आके लाएंगे. यू नो दैट इज हाउ मच इन्फ्लुएंस दे हैव थ्रू देयर कम्युनिकेशन. बट नंबर 3 वाले में एक अगेन जो प्रॉब्लम आ जाती है, नंबर 3 वाला इंडिविजुअल क्या सोच के चलता है कि सब कुछ मैं कर लूंगा. उससे क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है. दे नीड टू डीक्लटर, डेलीगेट, उनको वो सिखाना पड़ता है. नंबर 4 राहु, राइट. अब राहु जब हम पढ़ाते हैं ना, तो राहु का एक कोड वर्ड रखा हुआ है मैंने, दैट इज अ गुड फौजी, डिसिप्लिन. माय हस्बैंड इज नंबर 4, गुड फौजी. तो वो सीखने का ही तरीका है कि 4 सिखाना है, गुड फौजी. डिसिप्लिन रहेगा, पंक्चुअलिटी रहेगी, बिल्कुल अगर बोला है कि ऐसे जाना है ऐसे जाना है, यू नो वेरी
प्रॉपर अबाउट थिंग्स। बट नंबर 4 की एक प्रॉब्लम और क्या आ जाती है कि कभी कभार उनका बिकॉज ऑफ स्ट्रेस लेवल, अगर उनका स्ट्रेस डिस्टर्ब हो जाता है, स्ट्रेस लेवल, तो वो हेल्थ को भी इफेक्ट कर जाता है नंबर 4। एंड नंबर 4 के केस में रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़ा डबल मेहनत से आते हैं, बहुत आसानी से नहीं आते हैं, एक बारी में काम नहीं होता। हाँ। नंबर 5 मर्क्यूरी, वेरी वॉलेटाइल नंबर। जैसे आप थर्मोमीटर में मर्करी समझो, दैट्स हाउ अगेन वी टीच। जितना उसको टेम्परेचर आप दोगे उतना वो राइज करेगा, टेम्परेचर विड्रॉ करोगे वो सेटल डाउन हो जाएगा, बट वो वॉलेटाइल है बहुत ज्यादा। सो अगर मैं कभी भी किसी बच्चे की ग्रिड बनाती हूँ जिसमें मुझे नंबर 5 प्रोमिनेंट दिखता है या थोड़ा एक्सेस में दिखता है, द फर्स्ट थिंग आई टेल द पेरेंट्स इज इसको बहुत संभाल के चलो, यू नो, बिकॉज नंबर 5 में क्या पोटेंशियल है, नंबर 5 कैन रूल द वर्ल्ड, बट नंबर 5 कैन ऑल्सो मेस अप थिंग्स काफी ज्यादा, क्योंकि उनमें एक टेंडेंसी क्या होती है बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर मैं उनको बोलूंगी ना कि इस रास्ते से मत जाना, वहां से घूम के जाओ, वो जाएंगे उसी रास्ते से देखने के लिए कि क्यों मना किया है। यू नो दैट इंक्विजिटिवनेस, दैट एडवेंचर, दैट एक्सप्लोरर, वो है नंबर 5। नंबर 6 ब्यूटिफुल नंबर ऑफ शुक्र, वीनस जिसको हम बोलते हैं। 6 वाले लोगों की एक बड़ी मजेदार या लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज, यू नो, बेसिक कंफर्ट तो इनकी लाइफ में रहेगा, आप कुछ भी कर लो, ये मेहनत करें ना करें, बट दैट लग्जरी इज देयर। एंड नंबर 6 की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, अब डिपेंडिंग अगेन किस रेशियो में नंबर 6 बैठा है, वैनिटी भी हो सकती है उस इंसान में इतनी ज्यादा कि सारा टाइम एक मिरर क्रॉस करते हुए भी अपने आप को चेक करेंगे, इतनी वैनिटी भी हो सकती है। बट एक नॉर्मल नंबर 6 अगर हम एवरेज लेके चले, दे विल बी दोज पीपल जो घर से अगर बाहर नीचे कुछ कार से भी लेने जा रहे हैं, वो 1 मिनट को रुक के देखेंगे जरूर, आधे ओके, यू नो, डिसेंट। वो जैसे हम लोग, कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है चल पड़ेंगे, वैसे नंबर 6 नहीं होंगे। Number 6 do extremely well in beauty related areas, design and all. Number 7 Apo, very interesting number, Ketu का number है, Neptune, right? And excellent professional number. Number 7 वाला ना इंसान में हमेशा लाइक जो जिनका आता है उनको बोलती हूँ, वो शादी वगैरह करे ना करें, वो करेंगे, खुश रहते हैं, बिकॉज एक बार ही कर लेते हैं तो घर उनके लिए सब कुछ हो जाता है। बट जब तक नहीं ना, उनकी प्रायोरिटी इज ऑलवेज प्रोफेशन, करियर, दे आर वेरी एम्बिशियस, मतलब वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, एंड जो असली खुशी है ना उनको, वो अपनी अचीवमेंट एंड कंटेंटमेंट उसी से मिलती है। नंबर 7 वेरी यूनिक थॉट, अलग ही सोचेंगे, मतलब बाकी सब लोग कुछ सोच रहे हैं, नंबर 7 वाला बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, विच इज अ वेरी गुड हैबिट ऑल्सो, बिकॉज दे कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल, एंड जैसे जैसे एज बढ़ती है बढ़ता जाता है। नंबर 8 इज शनि। नाउ शनि इज एन इनफाइनाइट पोटेंशियल का नंबर, बट शनि वाले इंडिविजुअल्स को, जैसे राहु में मैंने बोला, मिलेगा सब कुछ कर्मा के हिसाब से, बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ कर्मा, मिलेगा सब कुछ, लेकिन थोड़ा ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, डिलेज के बाद। तो नंबर 8 में एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कभी कभार, अगर वो लोग यू नो वो लोग फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, दे टेंड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज आप खुद ही सोचो, जो मेहनत कर रहा है, जेन्युइनली मेहनत कर रहा है, और उसके रिजल्ट्स उतने उसमें नहीं मिल रहे, तो वो ना गिव अप करने पे आ जाते हैं। सो नंबर 8 के लिए एक ही मैजिक वर्ड है, एंड दैट इज परसिवियरेंस, राइट, एंड वेरी स्केरी नंबर आल्सो, यू नो, पीपल, मतलब लोगों को अगर आप 8 नंबर बोल भी दो तो वैसे ही डर जाते हैं कि अच्छा रे यार, बच्चा 8 नंबर लेकर पैदा हो गया तो पहले हम लोग एक्चुअली नहीं, हम लोग मिसकंसेप्शन के साथ चलते हैं। तभी जब मैं पढ़ाती भी हूँ ना, आई ऑलवेज एक्सप्लेन सबसे पहले, कोई भी नंबर अच्छा, कोई भी नंबर बुरा नहीं है, हर एक नंबर में अच्छा और बुरा दोनों है। सो वी हैव टू, हाँ, लेकिन इन कंपैरिजन राहु एंड शनि, दैट इज 4 and 8, बाकी नंबरों के हिसाब से डेफिनेटली थोड़े ज्यादा चैलेंजिंग है, बुरे नहीं है, चैलेंजिंग। ओके, एंड लास्ट हमारा आया 9 इज मंगल, मार्स, वेरी डिवाइन नंबर, इसको डिवाइन नंबर बोलते हैं, मदर टेरेसा नंबर भी बोलते हैं जब हम लर्न करते हैं, बिकॉज ये वो लोग हैं जो रास्ते में रुक के किसी की मदद करेंगे, रोड क्रॉस कराएंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन नंबर 9 को सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, एंड दैट इज गुस्सा। इनका गुस्सा बहुत तेज आता है, तो जिस दिन ये अपना गुस्सा संभालना सीख जाएंगे, नंबर 9 भी, दे कैन अचीव द वर्ल्ड।
So now see, this is 1 to 9. जितना मैं short में बता सकती थी, I tried to restrict myself. Right? These are psychic numbers, how they influence our personality. Right. Okay. एक बिल्कुल एब्सोल्युटली. और मेरे ख्याल से मेरे खुद के घर पे 1, 4, 7 ये तो प्रोमिनेंट नंबर्स थे. और जो आपने मुझे बताया है वो कहीं ना कहीं आई कुड रिलेट, क्योंकि जो मेरा नंबर 1 वाला है दैट इज माय सन एंड ही इज लाइक बिल्कुल सही, किसी की बात मानता ही नहीं, उसको अपनी ही करनी है. मतलब ही विल लीड, उसको अपने हिसाब से बताना ही. आप उसको कुछ बोल भी दोगे तो भी उसको अपनी बात ला के अपना पॉइंट प्रूव करना ही करना है. सो आई हैव सीन दीस कि वो होता है. Born leaders. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. मिसेस देवगन, हम इससे पहले आगे चले, एक क्वेश्चन आया है. तो she is Mrs. Rajni Vasudev and she is asking that her son is born on 21st October 2002 and he is pursuing CFA. What does his future say? So can you bring a card for him? Karan. 21st October 2002. इनका क्वेश्चन क्या है? उनके बेटे के लिए क्वेश्चन है. उसका नाम करण है और he is pursuing CFA. So she wanted to ask about his future. If I just see his psychic number, he is Guru. 21 से 3 है. So इनका energy is very focused. मतलब 3 वाला इंसान एक बहुत ही mature उस तरीके से चल पाता है. बट एक बारी कार्ड चेक करके I'll tell you. Karan, right? No, that's a nice card. It's the Fool card. Don't go by the name. Can you see it? Yes, yes, Okay. yes. Now the Fool card always suggests कि it's about the path you are taking. So Karan needs to be very clear about the path that he is taking and the direction that he is going in. So please guide him correctly because इस बच्चे में potential है. इस बच्चे का psychic number 3 है. कोई doubt ही नहीं है इसके ऊपर. लेकिन इसमें abundance of 2 भी आ रहा है. अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको tarot and numerology mix करके बोल रही हूँ. That is how I work actually. Because सिर्फ एक module मुझे लगता है काफी नहीं होता. अब इसमें जब excess 2 आ जा रहा है करण के डेट में, Karan has a tendency of getting influenced very easily. मतलब उसने कुछ बोल दिया, वो सोचेगा अच्छा हाँ शायद वो ठीक कह रहा है. किसी और ने कुछ और इनपुट दे दिया, he'll get a little confused. So वो अभी ऐसे स्टेज पे है. And with this card also, ये कार्ड भी वही चीज कहता है, Fool कार्ड, कि it's very important for the paths that you take, otherwise you can fall, right? So if Karan needs some kind of professional guidance also, get him that, so that he is very clear about the path he is taking. Otherwise, it's a good energy card. Okay. Right. Another question. Mrs. Rakul wants to ask that her date of birth is 25th December 1985, and she wants to know about what kind of business she can do. Kiss home-based business. Okay. Now see. Now this is a question जो actually to be honest tarot से नहीं निकलता, because what kind of a business tarot नहीं बता सकता. tarot से हमें पूछना पड़ेगा कि ये या ये इनमें से कौन सा business अच्छा होगा. So if you have options that will give a better answer, right? But if you're just asking कि हाँ क्या ये सही होगा, homemade business कुछ करना उनके लिए सही होगा? We can take this question as like this also. वो 25 है. आपने 25 बोली ना उनकी डेट, वो नंबर 7 है. नंबर 7 है. वो कुछ भी करें लेकिन उनको काम करना जरूरी है. पक्का गुड आइडिया होगा. अगर बाहर जाके नहीं कर पा रहे, घर से करें. बट शी इज अ नंबर 7. शी विल बी सो रेस्टलेस इफ शी डजंट डू समथिंग, एंड शी विल बी so happy if she is able to align her energies and do something which will give her meaning. You know कि मुझे ये करना है, even if it's something very simple. But a number 7 has to work, has to have a purpose actually, purpose in life. वो है number 7 कल. And if she wants to go deep into the choice of professions, like I said, उसके लिए then obviously other calculations need to be done. मैं ऐसे offhand बताऊंगी, that will not be a complete answer from my side. Okay. Right. I think फिर same एक और question है Mrs. Deepak, and she is asking that she is born on 7th May, again 7 number, and what does the card say about my career? वही है. We can take a card for her. ये निकाल सकते हैं. This is a general question, है ना? What kind of work to do वो नहीं बताएगा tarot, but in general a career energy. You said Mrs. Deepak. Deepak, yes. Mrs. Abhilipsa. Naam is Abhilipsa, sorry.
She wants to know a general energy about her career, right? Career. Right. She's also 7 born. Okay. See, right now what she's feeling is कि बहुत, like, you know, she's feeling a little dejected. Ask her if I'm right. She can hear me. Yeah. She's feeling as if she's not, you know, done anything substantial, because ये card हमेशा वो feeling देता है of losses, you know, of things you've lost. But इसमें क्या important है ना, to see what is still behind you. Now, seeing this card, I can clearly say that there are some compromises she's made, some things that she's given up career-wise because of obviously some choices. But that doesn't mean it's over, and that doesn't mean it can't be revived. Stop looking here. Look here. Okay? Look at what is still standing behind you. I am very sure she has a good support system. अगर ये अपने husband, बच्चे या जो भी इनका support system है, if she tries to work around that with them, she can figure out a very good solution for her work energy. I'm very sure about that. Why am I sure? Because the second card coming out is this. This is support from family and happy energy, right? So please go ahead and do what you want to do. Don't stop yourself. Okay? Right. So one more question, and then we'll proceed to our, questions. So last is. I can see her writing the card right. उन्होंने कमेंट्स में रीडिंग्स लग रही है ना, वो बड़ी अच्छी लग रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ रमा एंड शी इज आस्क, उसका डेट ऑफ बर्थ इज 1 December 1988 एंड शी इज आस्किंग उसका अपना घर कब होगा. ना घर कब होगा? नेक्स्ट 2 to 3 years लगेंगे. बहुत क्विक सेटलमेंट अपनी प्रॉपर्टी की नहीं दिख रही है, और डोंट रश इनटू इट आल्सो, बिकॉज थोड़ा ठहराव का कार्ड है. दिस इज अ कार्ड दैट सेज मैच्योरिटी. ओके, डोंट रश इनटू एनी डिसीजन, बिकॉज थोड़ा सा एक डिले का कार्ड साथ में आ रहा है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, सो टेक योर टाइम एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट द डीड दैट यू साइन, अदरवाइज पैसा अटक सकता है. सो इस साल डोंट रश इनटू इट. ओके, राइट. फाइन. सो मिसेस देवगन, अब कुछ और, क्योंकि हमने टैरो कर लिया है, मैं न्यूमरोलॉजी पे वापस आना चाहती हूँ. व्हाट आर कार्मिक डेट नंबर्स? क्योंकि ये मैंने बहुत सुना है. एक बार इनफैक्ट हाँ, क्योंकि मैंने कभी एक बार एक वीडियो भी देखी जिसमें कहा कि अच्छा 16 बॉन्ड्स आर ये कार्मिक डेट का नंबर है, या 13 इज अ कार्मिक डेट नंबर. इज इट राइटली सो, या ये क्या होता है? एक दो तरीके होते हैं. सम पीपल फॉलो डेट से, कि जैसे आपने बोला 13 है या 16 है, बट आई डोंट फॉलो, लाइक वी डोंट फॉलो दैट. हमें कैसे हम सीखते हैं इसको, ज्यादातर आप एक और चीज, बिफोर आई एक्सप्लेन कार्मिक टू यू, अ लॉट ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट दे डू कुआ नंबर एंड नॉट कार्मिक डेट नंबर्स. वो ज्यादा कुआ नंबर कर रहे हैं. कुआ नंबर इज वास्तु डायरेक्शन, लकी डायरेक्शंस, वास्तु, वो उस पे बेस होता है. पास्ट लाइफ रिग्रेसर्स जो होते हैं, दे डू कार्मिक डेट. एंड लकीली जिन्होंने मुझे सिखाया था, उन्होंने सिखाया. क्यों? क्योंकि कार्मिक डेट भी हमारे ईयर ऑफ बर्थ से निकलता है. अब आप बोलोगे कि ईयर ऑफ बर्थ मतलब उस पूरे साल में जितने लोग पैदा हुए उनका सारा सेम नहीं. देयर इज अ फॉर्मूला जो हम कैलकुलेट करते हैं. इट इज अ सेपरेट वन फॉर मेल्स, सेपरेट वन फॉर फीमेल्स. जिसपे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को आया था. सो व्हाट अबाउट ट्रांसजेंडर्स एंड व्हाट अबाउट पीपल हु आर होमोसेक्सुअल्स, you know? So science is evolving, so I hope very soon we'll have formulas for that also, because everybody has a right to get their numerology done. But you know, in this field there are so many things that come across and questions that come to you that we still are searching for answers. Now coming back to karmic debt, as the name suggests, हर एक इंडिविजुअल, नॉट की 16 या 13 पे बॉर्न नहीं, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर एक सर्टन अमाउंट ऑफ कार्मिक डेट होता है. दैट इज डेट, कर्जा, karmic karmas which we've brought from our previous life, right? अब किसी का वो थोड़ा सा बैलेंस्ड होता है, किसी का कम होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है. अब वो डिपेंड करता है कि जब हम आपकी लो शू ग्रिड इज व्हाट पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजिस्ट्स मेक. तो जब हम आपकी ग्रिड बनाते हैं, उसमें आपका कार्मिक डेट वेरिएबल कितना निकलता है, उसको चेक करके वी ऑलवेज सजेस्ट कि क्या तो उससे इश्यूज आएंगे और कैसे उसको पे बैक करना है. बहुत से लोगों की पूरी लाइफ निकल जाती है विदाउट इवन रियलाइजिंग कि कार्मिक डेट कोई चीज है और उनका कार्मिक डेट क्या है, नहीं पता चलता.
है ना, पता ही नहीं होता। लेकिन जब पता चल जाए और जब आप वो इशू देखते हो हाईलाइट होते हुए और उसकी सोल्यूशन समझ पाते हो, आई वुड से इट इज लाइक अ लाइफ चेंजिंग थिंग, बिकॉज आपका साइकिक और डेस्टिनी कितना भी अच्छा हो कॉम्बिनेशन, बट अगर कार्मिक डेट डिस्टर्ब्ड है ना, वो अच्छे से अच्छे कॉम्बिनेशंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। दैट इज कार्मिक डेट। राइट। अच्छा, एक पर्टिकुलर नंबर की अगर बात करें, जैसे आई हैव हर्ड सो मच अबाउट नंबर 13, यू नो, इतना हमने बचपन से 13 नंबर के बारे में सुना है। कुछ कुछ जगह पे तो आप चंडीगढ़ देखोगे तो 13th फ्लोर ही नहीं होता है। यूजुअली बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स में 13 फ्लोर ही नहीं रखते हैं। इस नंबर के साथ ऐसा क्या अटैच है दैट यू नो ये क्वेश्चन, मतलब ये वाला नंबर इतना अनऑस्पिशियस क्यों माना जाता है? वही चीज है जैसे लोग मान के चलते हैं, जैसे हर कोई मानने का, पहले जैसे आप कहते हो ना 4 और 8, जहां 4 और 8 देखा एक नेगेटिव थॉट आ जाती है, बट ये गलत बात है। उस बेचारे 13 ने क्या गलती करी है ना, 13 भी तो एक सीक्वेंस में ही आ रहा है। एंड आप जब 13, बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल मैं उसको 13 को नेगेटिव लेके नहीं चलती हूँ, बल्कि 13 वाले बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि आर एक्सीलेंट करियर पीपल। क्यों? क्योंकि आप देखो 1 and 3 इंडिविजुअल क्या हुआ, 1 इज सूर्य, 3 इज जुपिटर। आप उसको बुरा कैसे बना दे रहे हो कंबाइन करके, राइट? सो बुरा कोई बुरा नंबर नहीं होता। 1 and 3 से आया 4 इज राहु, अ गुड फौजी, उसको बुरा कैसे बना दे रहे हो? सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि 13 को लेके जो एक एक मिथ बनाया हुआ है कि इट्स बैड लक और इट्स इनऑस्पिशियस नंबर। आई एम सॉरी, लाइक बिल्कुल ये बिलीफ गलत है। आपने मुझसे एक दिन पहले ड्यूरिंग वन ऑफ आवर कॉन्वर्सेशंस ये भी पूछा था, आई रिमेम्बर, व्हेन यू सेड व्हिच इज द लकीएस्ट नंबर। सेम वे, यस, you know, so if we can't call a number bad, we cannot call any one number the luckiest number also. luckiest one, right? क्यों? आपके लिए luckiest number कुछ और होगा, मेरे लिए luckiest number कुछ और होगा. So we can't identify just one number as lucky or unlucky, ना? So it's unfair that way. बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, या मैंने शायद पहले भी ये बात कही कि आजकल बहुत ज्यादा पीपल आर इनटू दिस न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, और हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कितना इफेक्ट आपकी लाइफ में इन नंबर्स का या आपकी इन सब चीजों का पड़ता है आपके ओवरऑल करियर ग्रोथ में? Nice question. I like this question. Why? Because बहुत सिंपल आंसर है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो के थ्रू आंसर्स, ये सारे क्या हैं जो मैंने अभी पहले भी आई मेंशन टू यू, दीज आर गाइडेंस टूल्स। सो मेरा ना बिगेस्ट चैलेंज आई वुड से एज अ हीलर क्या होता है, टू ट्राई एंड टेल द क्लाइंट दैट आई एम हियर टू गाइड यू, नॉट टू क्रिएट मैजिक फॉर यू। तो अब आप पूछ रहे हो कि लाइफ में लोगों के ये टूल्स कैसे हेल्प करते हैं, एंड हाउ डू दे हेल्प पीपल। हाउ दे हेल्प पीपल इज, जैसे सिंपल न्यूमरोलॉजी को ही लेके चलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आई डील विद दैट मोर। Numerology is like an in-depth analysis of your personality. There have been clients जिनको मैं सालों में 5-5 साल के मेरे पुराने clients चल रहे हैं, never have I ever met them face to face, कभी नहीं मिलना हुआ। बट जब पहली बार उन्होंने किसी की रेफरेंस के थ्रू कनेक्ट किया, उनकी ग्रिड बनाई मैंने, डेट ऑफ बर्थ और नाम लिया, हम टाइम भी नहीं लेते हैं न्यूमरोलॉजी में, ओनली डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेम। वो लेके जब ग्रिड रिपोर्ट बना के मैं उनको ईमेल करती हूँ कि दिस इज योर रिपोर्ट, 2-3 पेज की रिपोर्ट बनती है, एंड उनको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। देयर आर थिंग्स दैट आई एम एबल टू टॉक अबाउट सिंपली थ्रू नंबर्स, whereas like I don't know them personally. That is how accurate science numerology is. How does it help you? It helps you by guiding you. If I tell you, Kiran, that this is a strong point in you and this is a weakness in you, right? आप अपने जो strong point को है उसको आप उभार के ऊपर लाओ, और जो ये आपकी weakness है उसको थोड़ा कंट्रोल करो या अपने आप को करेक्ट करो। एंड जो ये कहता है ना कि मैं तो ऐसी हूँ, आई कांट चेंज, गलत है, बहुत गलत है, राइट? लाइक मैं अपना ही देती हूँ, फॉरगेट एनीवन एल्स दैट आई टॉक अबाउट। आई एम अ साइकिक नंबर 2, ओके? चंद्रमा, फॉलोअर, पीछे रहना वेरी हैप्पी, मुझे बैकग्राउंड में रखो वेरी हैप्पी। एज अ चाइल्ड
people would come to my house, our house, go away. We're 3 sisters. There have been instances where people have thought कि घर में 2 बच्चे थे, मेरा पता ही नहीं चलता था. I was so quiet, so shy and low in confidence, right? But now, through experience and pushing myself, now a number 2 person needs somebody to give them that dhakka, Push. right? So God bless my mother till I got married, and God bless my husband after my marriage. These 2 individuals have made sure that I stand up, you know. तो क्योंकि पहला रिएक्शन मेरा क्या होगा, I can't do this, मेरे से नहीं होगा, दिल से क्यों नहीं होगा, when somebody else, you know, so giving you that reassurance. So all these modules that we work with are to guide you कि ये आप में अच्छा है, ये आप में weakness है, इसको ज्यादा यूज करो, इसको कम यूज करो, और कुछ नहीं है ये. तो अगर आप उस चीज को समझ जाओगे और अपने आप को you know properly navigate कर पाओगे, then success is yours ना. Absolutely. That is how it helps. बिल्कुल. Mrs. Devgan, before we proceed to final questions, एक बार एक question आ रहा है, and I think he's an aspirant. So his name is Budhi, that I can see on my screen, and he's asking कि मैं बहुत time से defense के लिए he's trying, but he's not able to make it. So can you bring a card for him? Budhi. नाम तो डेट डाला है. I think अभी आप पूछेंगे भी तो what's your name? If he's नाम ना भी हो, date of birth अगर मैसेज करें, that will be wonderful. But चलो, let's just see what the cards are saying. Question is trying for defense but not able to make it, है ना? Yes. See, it's a very clear reading. Please have a plan B ready for yourself, okay? Because somewhere थोड़ी सी choices का card है, meaning, and with this ये card है, meaning what? कि please don't put all your eggs in one basket. एक ही चीज के अंदर इतना मत इन्वेस्ट कर दो कि बाय चांस वो चीज अगर नहीं आपकी बनती है तो आपके पास प्लान बी रेडी नहीं है. So I'm not discouraging you. Please carry on trying for this. Give it your best. आप पूरा करो. And if you can, I think you'll have my Insta also on this. You can find me and message me. Give me your date of birth. उससे और क्लैरिटी मिलेगी वेदर ये करेक्ट फील्ड है आपके लिए या आपको शायद कुछ और प्लान सोचना चाहिए. You know, कभी कभी हम कोशिश बहुत करते हैं एक चीज के लिए, बट शायद वो हमारे लिए मैनिफेस्ट होती नहीं है. कार्ड्स थोड़े से डिलेमा वाले आ रहे हैं, मतलब एक बार थोड़ा सा सब क्लैरिटी लाओ कि क्या इसी जगह में सारा कुछ करना है या एक बैकअप प्लान अपने लिए रेडी रखना है. ओके, बिल्कुल. और इन द एंड यू रियलाइज कि जो आपके साथ हुआ है वो एक्चुअली बेटर के लिए होता है. बाद में आपको पता चलता है कि आप किसी और चीज के लिए डेस्टाइन्ड हो. इट्स नॉट नेसेसरली कि जिस पे आप सब कुछ लगा दो वही आपकी कहानियां है, बट फिर हमारा वही मैं कह रही हूँ, इसमें भी 2-3 मेरे वो है, बट हमारा फिर वो चलता ही जाएगा. मुझे ना मेरा सेम आई वाज ट्राइंग फॉर डिफेंस, सो मेरा नहीं हुआ. आई हैड मेडिकल इश्यूज, सो मेरा मेडिकल आउट हो गई मैं. सो आई यूज्ड टू थिंक कि मेरा क्यों नहीं हुआ ना. मुझे बड़ा शौक था आर्मी ऑफिसर बनने का. बट देन लेटर ऑन आई मेट माय हस्बैंड एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि चलो मैं नहीं, कम से कम हस्बैंड तो फौजी है. सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर रीजन एंड लेटर ऑन वी रियलाइज इट. उस टाइम हमें कभी कभी बुरा लगता है, हमें नहीं समझ आती है, विच इज ऑल्सो नॉर्मल. बट ट्रस्ट मी ना, जो होता कहते नहीं, हमारे बड़े हमें कहते थे और तब ना मैं बहुत इरिटेट भी होती थी कि ये क्या लॉजिक, जो होता है अच्छे के लिए होता है. उस टाइम नहीं लगेगा, उस टाइम बुरा भी लगेगा, बट इवेंचुअली ना एक पाथ हमारे लिए बन जाता है अपने आप, एंड देन यू रियलाइज कि ठीक है, दिस वाज गुड, है ना. बिल्कुल. अच्छा मिस देवगन, आप भी एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, जो जिस मेन पर्पस के लिए मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया, टैरो कार्ड रीडिंग. जैसे मैं आपसे बात भी कर रही थी पहले कि इट्स सच अ वंडरफुल वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, यू नो, फॉर लेडीज. इसके बारे में मैं चाहती हूँ आप थोड़ा डिटेल में बताइए, कितनी फ्रीडम आपको देता है और कैसे आपने जब स्टार्ट किया, इसको कोई भी कर सकता है या कहाँ से इसके कोर्स किए जाते हैं या कौन इसको सिखाता है, कैसे कर सकता है कोई भी टैरो? टैरो न्यूमरोलॉजी बहुत से इंस्टीट्यूट्स आजकल बहुत से शुरू हो गए हैं. कोई भी ऐसे रिकग्नाइज्ड कॉलेज कोर्स नहीं होते हैं, बट बिकॉज दिस इज ओकल्ट साइंसेस, तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिखाते हैं, बहुत से इंडिविजुअल्स हैं जो सिखाते हैं. लाइक आई टीच टैरो, आई टीच न्यूमरोलॉजी, बट
जैसे अब मैं कैसे करती हूँ कि आई डोंट डू ग्रुप्स, आई ओनली डू वन ऑन वन, बिकॉज आई लाइक टू कनेक्ट विद वन पर्सन एंड टीच दैट पर्सन, इतना कि बस मुझे भी तसल्ली, उनको भी। सो बहुत लोग हैं सिखाने के लिए, बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं सिखाने के लिए। माई ओनली सजेशन, वन सजेशन, जिससे भी सीखोगे, लाइक टॉक टू पीपल, कनेक्ट विद पीपल एंड ट्रस्ट मी, किसी एक के साथ ना एक वो क्लिक होता है। मैंने ऑलमोस्ट 8-9 लोगों से बात करी थी एंड दिस लेडी, नंबर इनका मिला था जिनसे सीखा था, इनसे 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई थी एंड आई जस्ट न्यू कि मुझे इनसे सीखना है। एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल फॉर 1 hour टू हर हाउस टू लर्न एंड कम बैक, तो बस इस ladies should be very careful. Don't get carried away by only pay 999 and learn tarot in 5 days. Please don't get carried away by that. Be very sure about the genuineness of the person who's teaching you, number one. Secondly, जो आप पूछ रहे हो, which is actually the purpose of this podcast also, that is encouraging army wives to work, है ना? Yet be with their husbands wherever they go and balance their home. I am in the best situation right now to tell you. My son is giving his 12th boards, college admissions happening, right? My parents, in-laws are at that age when they need me and I'm available. My husband needs me. I want to be with him. Yet I want to be financially independent, right? Yeah. I want to be busy. I want to feel useful. And my field of work is such wherein I feel good because I'm able to help people. है ना? So आप पोस्ट करो, कहीं से भी करो, जिसके साथ आपको क्लिक हो, जिसके साथ आपको कनेक्ट फील हो, आप पोस्ट करो। आफ्टर दैट क्या होता है, like you said, how easy is it? It is so easy to work from home with these modules. Like my husband was posted in Leh for 2 years. I visited him 3-4 times and my work did not stop for one single day. Why? Because I carried my laptop with me, I carried my notes with me, I carried my cards and Wi-Fi चाहिए था। Wi-Fi नहीं भी था, phone data था. It was good enough, right? My work did not suffer, my work did not stop. And trust me, ये काम अब ऐसे हैं कि I cannot disappear for a 4-day holiday or a 5-day break. I cannot disappear. There are some clients who are so dependent कि वो एक ना panic button भी press हो जाता है कुछ का कभी-कभी. So I have to be available. And I want to be available because I love what I do. For me, it's not work. I am so passionate about what I do, right? So, pakka karo. And like I said, any part of the country you travel with your husband, your work continues. And the most interesting experience I'll share with you, I was in Dras for one night, Dras. जिसको मानते हैं इतना high and coldest place and all of that. Sitting there also, because of an emergency call, I have done a tarot reading sitting there at 10 p.m. at night on my phone with my phone data on. Absolutely. All I need is my deck of cards, which always travel with. So much of freedom, so much of, and I decide today my son has an exam. I'm sorry, I can't take appointments. Tomorrow I have free, I'll do 6 appointments, one after the other, right? So there is so much of freedom. Income is decent. I'm earning more than what the last school pay was for me. So, फिर क्या बुरा है आप बताओ? And I get to travel with my husband. I am of the mindset. There are people who think differently. I'm not judging anyone, but I'm of the mindset that शादी करिए, साथ रहो. Be with him wherever you can. Right. और आई थिंक कहीं ना ये हम सब में, मतलब मैं तो जितनों को जानती हूँ, जितने लोगों, जितनी यूनिट्स में मैं रही, मैंने सब में देखा है, वो एक है अंदर ना कि बच्चों के लिए पास हस्बैंड तो है ही नहीं, फादर का प्यार तो बहुत आता जाता प्यार मिलता है उनको, तो कोई एक पेरेंट तो कॉन्स्टेंटली उनके साथ चाहिए। तो आप खुद भी अपने करियर वाइज आप उतना ज्यादा वो नहीं होता। अच्छा, हस्बैंड का करियर ऐसा है कि आप उनको नहीं बोल सकते कि तुम जॉब छोड़ दो, या उनकी नौकरी ऐसी नहीं कि एक पर्टिकुलर 9 to 5 है। तो देयर आर सम डेज व्हेन ही इज कमिंग फॉर कभी-कभी तो फादर ये भी भूल जाते थे कि हम कौन सी क्लास में है। हाँ, कोई पूछता था कौन सी क्लास में, तो मेरी फादर मम्मी की तरफ देखते थे कि बताओ, अब वो प्रोफेशन ही ऐसा है ना, वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट वी आर अवेलेबल ना, वी आर देयर, गेट वर्किंग और क्या चाहिए। बिल्कुल
Absolutely. So you Lovely talking to you, Mrs. Devgan, and what a lovely session, I guess, क्योंकि हमने कितने लोगों से बात भी कर ली, लोगों के आंसर्स भी दे दिए, and the way you answers ना, इसका एक I really find it very connection, वो जो होता है ना, एकदम आपका कनेक्शन हो जाता है किसी के साथ, जो आप आंसर्स के जवाब देते हो, और आपके बात करने के तरीके से पता चलता है that you are very passionate about what you are doing, you know, you are loving it. आप जो कर रहे हो, आप उसमें इतने खुश हो, that वो रिफ्लेक्ट होता है आप जब आंसर करते हो किसी को. So lovely talking to you. Thank you so much for giving me your time, and I wish you loads of success in your future. Thank you. And those whom we could not answer, please connect. Please connect. I'll try and help whomever I can. I'll pin your number also. मैं जब ये post करूँगी वीडियो बाद में भी, so I'll pin your numbers and all in the description box. So anybody who wants to follow her also wants to get in touch with her, so वो already आपका tag हो जाएगा. I'm just a few away. Yes. Pakka. ठीक. Thank you so Thank much, you, Kiran, and great job you're doing, and all the best to you also. Bye bye. Thank you so much. Good evening, Ms. Devgan. Bye bye. Good evening. Get on my head.